Hello everyone, myself Soumendra Sharma and today our topic is zeros of polynomials. Zeros of polynomial. In our previous video we discussed the polynomial. The polynomial is the relation between the variables and constant. For example, x plus 7 is the polynomial. X plus 7 is the polynomial because their variables power are positive. But our topic is zeros of polynomials. हमारा जो टॉपिक है वो है zeros of polynomial, यानी कि polynomials का जो वैल्यू है उनके zeros निकालने हैं कि किस वैल्यू पर ये रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. किस वैल्यू पर ये रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. Here, since x plus 7 is function of x plus 7 is function of x, यानी कि x plus जो 7 है वो किसका फंक्शन है, x का. किसका है, x का. so let fx equal to 0. हमने इसको लेट कर लिया 0. why? because we find the zeros of polynomial. क्योंकि fx क्या है, एक polynomial है और हमको polynomial का क्या फाइंड करना है, zeros फाइंड करना है. so now let fx equal to 0, then x plus 7 equal to 0. Then x plus 7 equal to 0. Now x7 is the constant. 7 is the constant. Now we transpose it. Then result outcome minus 7. Because 7 is positive, we transpose it. Then symbol are also change. So text is positive, we change, we transpose it. Then ये change negative. Clear है? So the value of x equal to minus 7. So the value of x equal to minus 7 is zeros of fx. और fx क्या है, एक polynomial. fx क्या है, polynomial. So that is a zeros of polynomial. So we can say that x equal to minus 7 is the zeros of polynomial fx. Clear? And other example is fx to 5x plus 3. 5x plus 3. Yes, x plus 5 plus 3. X plus 5 plus 3. Now let fx equal to 0. Why? Because we find the zeros of fx. Because we find the zeros of fx, then 5x plus 3 equal to 0. Now transpose 3. 5x equal to minus 3. Because 3 is positive, we transpose it, then symbol is change. Then x equal to minus 3 upon 5. Because 5 is the coefficient of x. Clear? Now we find the value of x. So that is multiple of x, then it's separated. Clear? यानी कि 5 है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हमको सेपरेट करना पड़ेगा, तभी हमको इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी. नहीं, x को हमको बिल्कुल अननोन करना है, बिल्कुल ठीक है ना, ये अकेला करना है, सेपरेट करना, तभी हमको इसकी क्या मिलेगी, वैल्यू. सो द x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5. सो द x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 इज zeros of fx. Clear है? Yes. First of all we discuss 4 linear polynomial. Since we know that the linear polynomial is where the variables power are 1. जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, वो पॉलिनोमियल्स कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स. सो fx equal to ax plus b. So fx equal to ax plus b is the standard form of the linear polynomials. यानी ax plus b जो किसकी है, लीनियर पॉलिनोमियल्स की क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है. where a does not equal to 0. जहाँ a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि a की वैल्यू यदि 0 हो गई तो ये क्या होगा, x वाली टर्म्स क्या हो गई, 0 हो गई, तो वेरिएबल्स ही नहीं होगा, तो ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा.
ठीक है नहीं, क्योंकि वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर आर 1। क्लियर है? यस। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू 9x प्लस 12, 9x, fx इक्वल टू 9x प्लस 12, then find the zeros of this polynomial, these polynomial। क्लियर है? Our question is fx equal to 9x plus 12, then find the zeros of these polynomial। Yes, fx equal to 9x plus 12, then find the zeros of this polynomial, this polynomial, यानी इस polynomials को हमको zeros find करना है। क्लियर है? जीरोस यानी कि रिजल्ट किसके आने चाहिए, यानी इनकी ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हमारे पास fx का रिजल्ट कितना आ जाए, 0 आ जाए। क्लियर है? तो नाउ सॉल्यूशन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल fx इक्वल टू 9x प्लस 12, वी फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, सो लेट fx इक्वल टू 0, fx को 0 के इक्वल लेट करा है हमने। क्यों करा है? क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। और क्या किसका? पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल कौन सा है? fx है। क्लियर है? fx इक्वल टू 9x प्लस 12, क्लियर है? सो लेट fx इक्वल टू 0, तो fx की वैल्यू कितनी है, 9x प्लस 12, पुट इट 9x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ 9x इक्वल टू 9x ट्रांसपोज द 12, transpose the 12, then symbol is change, so symbol is change, then x equal to minus 12 upon 9, why 9 is the multiple of x, then separate it, तो 9 डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल इट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल जानते हैं, 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, so x equal to minus 4 upon 3, so x equal to minus 4 upon 3 is, so x equal to minus 4 upon 3 is zeros of fx, zeros of fx। क्लियर है? यस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आप, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, फॉर अदर एग्जाम्पल इज next example second, yes, fx equal to 5x plus 10, 5x plus 10, then find the zeros of fx, zeros of fx। clear? yes। solution, since fx equal to 5x plus 10, since fx equal to 5x plus 10, clear है? now let fx equal to 0, now let fx equal to 0, why? because we find the zeros of fx, हमको fx का क्या फाइंड करना है, zeros फाइंड करना है, तो हमने fx को किसके इक्वल ऐड कर लिया, 0 के। नेक्स्ट, तो 5x plus 10 equal to 0, so the value of fx equal to 0, now transpose the 10, now transpose the 10, minus 10, yes, so the transpose the minus 10, now x equal to 5 piece multiples, then we separate it, तो minus 10 upon 5, जो 5 है जो x के साथ मल्टीपल्स में, इसको सेपरेट करेंगे तो किस फॉर्म में जाएगा, डिनोमिनेटर के फॉर्म में। नेक्स्ट 5 बन जा 5 एंड 5 2 जा 10, सो x इक्वल टू माइनस 2, सो x इक्वल टू माइनस 2, तो नाउ x इक्वल टू माइनस 2 इज जीरो ऑफ fx। क्लियर है? यस। तो ये हो गया अपना लीनियर पॉलिनोमियल्स का। ठीक है? यस यस। नेक्स्ट इज, फर्स्ट हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया और उसके जीरोस के बारे में पढ़ लिया। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। 4 क्वाड्रिलेटिक पॉलिनोमियल।
for quadratic polynomials. First of all, what is the quadratic polynomials? First of all, what is the quadratic polynomial? कि quadratic polynomials क्या होता है? We know that the polynomial is the relation between the variables and constant, and quadratic means यानी कि variables की power कितनी होनी चाहिए? 2. ठीक है ना? So that polynomial is called with the quadratic polynomial whose variables power are 2. Variables की power कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. So its standard form is ax square plus bx plus c. So its standard form is ax square plus bx plus c, where a does not equal to same the linear equation. ठीक है ना, कि सेम है. क्यों? क्योंकि इसमें a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए. क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई तो x स्क्वायर की टर्म्स क्या हो गई? 0. और x स्क्वायर की टर्म्स यदि 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगी? x स्क्वायर की टर्म्स यदि 0 हो गई तो ये क्या बन गई? x वाली टर्म्स, यानी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? क्वाड्रेटिक लिनियर वाले में. किसमें हो जाएगी? लिनियर में. और जब इसमें x स्क्वायर की टर्म्स है तो ये कौन सी हो गई? क्वाड्रेटिक. क्लियर है? किसी का डाउट दिमाग में एक चीज चले तो फिर उसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर यदि मान लो इसमें x की टर्म्स ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसमें x वाली टर्म्स नहीं है, तो क्या तब भी ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल क्वाड्रेटिक है. क्यों? अपनी जो मेन कंडीशन है वो है a पर डिपेंड करिए, यानी x स्क्वायर की टर्म्स होनी चाहिए, चाहे उसके बाद कोई हो या नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल आपको देखो, यदि ऐसे होता x स्क्वायर दे देता तो क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है, ये क्वाड्रेटिक है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर x की पावर कितनी मैक्सिमम? 2 है. ठीक है नहीं है? यस. तो देखो fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx. क्लियर है ना? here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. C is the constant term. Now we find the zeros of polynomial. Now we find the zeros of polynomials of quadratic polynomials. Here, so let fx equal to 0. So let fx equal to 0. Then ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो अब हमको fx इक्वल टू 0 रख दिया. ठीक है, तब रिजल्ट आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. क्लियर? अब लीनियर वाले में तो हमने आराम से इजी गोइंग ट्रांसपोज करके हमने उसको फाइंड कर लिया था, लेकिन इसके अंदर जब स्क्वायर टर्म्स में आ जाए, यानी क्वाड्रेटिक में इस फॉर्म में आ जाती है, तो उसको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं. तो एक मेथड हमने सबने पढ़ा है, एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड, फैक्टराइज मेथड. उस मेथड से हम इसको करना सीखेंगे. तो एक एग्जांपल से आपको सिखाते हैं. तो देखिए, यस, क्वेश्चन इज fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. देन फाइंड इट्स जीरोस. तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसके क्या फाइंड करने हैं? अपन को जीरोस फाइंड करना है. क्लियर है? तो सेम एज, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. नाउ लेट fx equal to 0. Now let fx equal to 0. Why? We find the zeros. So x square plus 5x plus 6 equal to 0. So x square plus 5x plus 6 equal to 0. क्लियर है? अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है. अभी ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास जो आई है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है? 0 के. और जब भी किसी पॉलिनोमियल्स का अलजेब्रिक एक्सपेंशंस में यदि कोई भी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर है ना? यदि एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू इस टाइप के सिंबल्स में आ जाती है, इस टाइप के सिंबल्स में आ जाती है तो वो हो जाती है इनक्वलिटीज. क्या हो जाती है? इनक्वलिटीज रहती है. लेकिन यदि वैल्यू इक्वल में है तो वो होती है इक्वेशन. क्लियर है? यस. वी सॉल्व द फैक्टराइजेशन मेथड. देखो फर्स्ट, अब हमको फैक्टर करना सीखना है इसका. तो देखो कैसे. सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ देखो फर्स्ट, ये हो गई फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड. क्लियर है? यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म. तो सबसे पहले फैक्टर करने के लिए आपको फर्स्ट और
लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, तो एक्स स्क्वायर और 6, क्लियर है, यानी कि हम एक्स स्क्वायर और 6 को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा 6x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6x स्क्वायर, क्लियर है। नाउ अभी फैक्टर द कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको हमको क्या करना है फैक्टर करना है, वो भी कौन से बाय प्राइम फैक्टर, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर आप सब लोग जानते हो कि 6, तो 6 के क्या होंगे बेटा 2, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करेंगे 2 से 6 को, हाउ मच टाइम 3 टाइम, क्लियर है, क्योंकि 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 टाइम। नेक्स्ट वी डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्लियर है, यस। सो 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 के फैक्टर क्या हो गया बेटा 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट हमने क्या किया फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, क्लियर। अब हमको क्या करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके हमने क्या किए फैक्टर किए, ठीक है। एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे बेटा, एक्स स्क्वायर के फैक्टर हो गए एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर फैक्टर क्या हो गए एक्स मल्टीप्लाई एक्स। एक्स स्क्वायर के जो फैक्टर हो गए हमारे कितने हो गए, एक्स स्क्वायर फैक्टर हो गए एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और 6 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमको इनका यूज करना है, हमको इनका क्या करना है यूज करना है, और जो मिडिल टर्म्स लानी है, क्या लानी है मिडिल टर्म्स, और मिडिल टर्म्स लाने की कंडीशन है या तो आप उनको ऐड कर सकते हो या उनको क्या कर सकते हो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करके इन दोनों में, और आपको क्या लेकर आना है 5 लाना है, क्या लाना है बेटा 5। तो हमको सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेनी है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है सबसे पहले 2 और 3, तो 2 एंड 3, तो फर्स्ट अप्लाई करके देखते हैं एडिशन, 2 + 3 इक्वल टू क्या आ गया 5, रिजल्ट हमारा क्या आ गया 5 आ गया। ध्यान रखना जो चीज़ आप यूज कर रहे हो उसी चीज़ से आपको मिडिल टर्म्स भी लानी है, और साथ में उन मिडिल टर्म्स को जो वैल्यू आ रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीपल्स है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई है, मल्टीपल्स है प्रोडक्ट है, वो हमको क्या हो जाना चाहिए मिल जाना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो हमको 6 का फैक्टर करें 2 और 3, उनको हमने एडिशन करके देखा तो रिजल्ट कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, यानी कि, और जो हमारे पास 2x है तो एक इसको दे दो, तो कितना आ गया 2x + 3x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5x, ठीक है, क्लियर। सो एक्स स्क्वायर प्लस, तो फैक्टर इज 2x + 3x और +6 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0, क्लियर। नाउ अब यह देखना है कि हमको यहाँ पर कॉमन कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो यहाँ कॉमन कितना आ रहा है दोनों में, अब हमको ये देखना है कि इसमें कॉमन आ रहा है, तो कोई चीज़ कॉमन है क्या, हमको कॉमन दिखे, यहाँ भी x है और यहाँ भी कितना है x है, यहाँ x कितना है 2 और यहाँ x कितना है 1 है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है x की 1, तो x कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे, यस बोलो बेटा, जब x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर में से x आउटर साइड आ गया, तो कितने बच गए x, क्लियर, यानी 2 रुपये में से 1 रुपया हमने बाहर खर्च कर दिया, तो कितने बच गए 1, तो 2 में से 1 बाहर आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सिंबल प्लस 2x में से x आउटर साइड आ गया, तो रिमेन 2, क्लियर है, हियर प्लस सिंबल प्लस का प्लस, ठीक है, यस 3 and 6, अब 3 और 6 में सबसे पहले देखो मिनिमम क्या है 3, और 3 की टेबल में 6 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे कितना 3, कितना लेंगे 3। नाउ रिमेंड इज x, और इसमें से 3 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू यदि आप कॉमन ले लेते हो न्यूमेरिकल टर्म्स, तो आपको अगली वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या करो उस जो वैल्यू है कॉमन लिए उससे उस वैल्यू को क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, क्लियर है। सो रिजल्ट इज, ठीक है। नाउ x + 2 आर द कॉमन, तो x + 2, देन वी टेक हियर x एंड हियर 3 इक्वल टू 0, क्लियर है, यस। नेक्स्ट बेटा, नाउ सो x + 2 एंड x + 3, x + 2 और x + 3 का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो इनका सेपरेट भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, तो x + 2 = 0 एंड x + 3 = 0, x + 2 = 0 एंड x + 3 =
0. Now transpose 2, then value is x equal to -2 and x equal to -3. Why? Because 3 is positive, फिर transpose it, then symbol is changed, so result is -3. क्लियर है? अब देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था, क्लियर है? तो उसके जीरोस में कौन से आ गए? x की 2 वैल्यूज आई, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू कितने आए? -3. यानी कि x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3, ये दो ऐसी वैल्यू हैं जिससे ये हमारा फंक्शन fx ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3 इज zeros of fx, zeros of fx. So x equal to -2 and x equal to -3 are zeros of fx. यानी कि fx में x equal to -2 और -3 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. क्लियर है? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम एक क्वेश्चन और देखेंगे. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, (9x² माइनस के 3x और माइनस के 2. क्लियर है? देन फाइंड द जीरोस, देन फाइंड द जीरोस ऑफ fx. तो fx को हमको क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है. क्लियर है? यस. Yes, first of all we write the fx equal to 9x square minus के 3x और minus के 2. Clear है? Now let fx equal to 0. Then 9x square minus 3x और minus 2 equal to 0. 9x square minus 3x minus 2 equal to 0. Yes. अब हम देखेंगे, अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है. ठीक है, इसके जीरोस हमको फाइंड करना है. तो वही प्रोसेस है, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट. तो 9x² मल्टीप्लाई -2. ठीक है, 9x² और -2 का क्या करना है? हमको प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई लेना है. सो रिजल्ट इज माइनस का 18x². सिंबल आया, सिंबल पे अभी फोकस नहीं करेंगे. सबसे पहले हमको जो न्यूमेरिकल टर्म्स है उसको लेना है. ठीक है, टेक द 18 एंड फैक्टराइज बाय प्राइम फैक्टर मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल 18. ठीक है, सबसे पहले हमको इसमें प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं? सबसे छोटी जो वैल्यू होती है प्राइम फैक्टर की उनसे होती है 2. क्लियर? उससे डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड बाय 2. 2 से 2 9 जा 18, 2 9 जा 18. नाउ वी डिवाइड अगेन 2. तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम किसका लेंगे? नेक्स्ट नंबर इज 3. 3 3 जा 9. नेक्स्ट इज 3 वंस अगेन 3 1 जा 3. सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखा तो वैल्यू क्या आई हमारे पास? 9. 2 से डिविजिबल नहीं है. देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर लेंगे हम. नेक्स्ट नंबर कितना है? 3. फिर 3 से हमने डिवाइड करा 9 को. हाउ मच टाइम? 3 टाइम. तो रिजल्ट इज 1. ठीक है, सॉरी 3 से डिवाइड करा 9 को. हाउ मच टाइम? 3 टाइम. वंस अगेन वी डिवाइड बाय 3. ठीक है, जब तक उसमें डिवाइड हो रहा है उसमें डिवाइड करते जाओ. ठीक है, ये नहीं हो रहा था. नेक्स्ट नंबर से करना है. फिर वी डिवाइड बाय 3 वंस अगेन इन 3. सो रिजल्ट इज 1. क्लियर है? यस. नाउ there are 3 values but become 2 values. हमको हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज दे रखे हैं, लेकिन हमको बनानी कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज. क्योंकि 2 वैल्यूज से ही हमको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. तभी हमारे क्या आएंगे? जीरोस आएंगे. क्वाड्रेटिक क्या है? ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर में हमेशा कितने भी चाहे फैक्टर कितने भी बड़े हो, हमको सिर्फ उनकी कितनी वैल्यू बनानी है? मल्टीप्लाई कर करके सब चीज़ों को 2 वैल्यूज में कंपेयर क्या करनी है? कन्वर्ट करनी है. 18 इक्वल टू कितना है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब हमको इसका यूज करके ऐसी वैल्यू लानी कि रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाए? मिडिल टर्म्स आ जाए माइनस के 3x. माइनस के कितने आ जाए बेटा? 3x. तो लेट्स सी. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल b मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. 2 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए? 6 और 3 एज इट इज 3. अब हमको ऐसा सिंबल यूज करना है ताकि हमारे पास रिजल्ट कितना आना चाहिए? माइनस का 3. अब देखो 6 इफ वी टेक पॉजिटिव, इफ वी टेक प्लस, तो रिजल्ट इज 9. 9 तो आना नहीं चाहिए, आना कितना चाहिए? -3. तो वी टेक माइनस, तो रिजल्ट इज 3. क्योंकि 3 में से 6 में से 3 लेस करेंगे तो वैल्यू आती है 3. लेकिन हमको 3 किसके चाहिए?
नेगेटिव चाहिए, यानी कि हमारे पास 6 क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए सिंबल किसका आ रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव आ रहा है। तो सिंबल चेंज करते हैं, माइनस एंड दैट्स इज प्लस। तो -6 में से 3 लेस करेंगे या -6 में 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, -3। रिजल्ट कितना आएगा, -3। सो अवर फैक्टर इज -6 and 3, -6 and 3 एंड x, x कहाँ से आएगा, या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर फैक्टर क्या होंगे, x मल्टीप्लाई एक्स, तो 1x इज एंड 1x इज, सो -6x एंड 3x। क्योंकि इनका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्ट आता है -3 और इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है हमारे पास, -18x स्क्वायर। तो नाउ 9x स्क्वायर माइनस के 6x, क्लियर है। देन आफ्टर प्लस 3x प्लस के, क्यों, क्योंकि हमारा रिजल्ट कितना आया था, प्लस लिया था 3, तभी हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, -3, ठीक है। और -2 = 0। नाउ टेक द कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल x आर द कॉमन, वी टेक x, क्लियर है। एंड 9 and 6 इन दोनों में से हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 के टेबल के अंदर। यानी कि इन दोनों के अंदर जो HCF है वो निकालना है। जब भी हमको कॉमन निकालना होता है तो उसके अंदर हम क्या निकालते हैं, उनका HCF निकालते हैं, ठीक है, नहीं, ठीक है ना। यानी HCF क्या उनका कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन कितना आएगा इसमें, 3, ठीक है। तो नाउ अब इसमें क्या करो, जब भी आपने इसे कॉमन निकाल लिया, अब उनसे इसको डिवाइड करके देख लो तो रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। जैसे 3x से डिवाइड करेंगे 9x स्क्वायर को, 9x स्क्वायर को अपन 3x से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और x से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x। तो रिजल्ट आ गया 3x। नेक्स्ट माइनस का माइनस, सिंबल का सिंबल, x से x कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, क्लियर है। हियर 3x - 2, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो कॉमन क्या होता है, ओनली 1, तो +1। सिंबल यहाँ देखना क्या है, ठीक है, नहीं तो +1। सो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एज इट इज, क्लियर है ना। नाउ 3x - 2, 3x - 2, टेक इट, दोनों में कॉमन है, इसके कॉमन ले लिया। अब क्या बचा रिमेन, 3x, इसमें से तो 3x, इसमें सिंबल है प्लस और क्या बचेगा 1, क्लियर है, इक्वल टू 0, क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखो बेटा, 3x - 2 और 3x + 1 = 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के। तो देन their separate value are also equal 0। 3x - 2 = 0, 3x + 1 = 0, क्लियर है। नाउ 3x = +2, हाँ 3x = +2 because 2 is negative, we transpose it, then symbol is change, ठीक है। so x = 2/3 because x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में थी उसको हम किस में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर फॉर्म में ले जाते हैं, क्लियर है ना। इक्वल के साइड में जो वैल्यू होती है उसके डिनोमिनेटर फॉर्म में ले जाते हैं, क्लियर है, यस। क्या सेम एज कंडीशन, 3x = 1 पॉजिटिव, देन ट्रांसपोज इट एंड सिंबल इज चेंज, क्लियर है ना। x 3 इज द मल्टीपल ऑफ x, देन टेक इन डिनोमिनेटर, is separated, x = -1/3, so x = 2/3, and x = -1/3, x = 2/3 and x = -1/3 are zeros of fx, क्लियर है। यानी कि fx के क्या हो गए, 0 तो है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।